Assalamualaikum students, hope you're all doing well. This is another video from STEM International. I welcome you all on behalf of them. And also अब जो है वो इस particular video में English book 7 की continuation है. Chapter The Inventor Who Kept His Promise की exercise को हमने start किया हुआ था अपनी last कुछ videos में. और this video is basically we are covering the very last portion of this chapter. और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने तीन चीज़ों को करना है. एक तो हमने tense की एक new form को देखना है. दूसरा dialogue which is the most interesting part of any exercise that we have done, yes. और आखिरी जो है फिर हम एक written expression की तरफ जाएंगे. एक नया तरीका कुछ भी लिखने का जो है उसको सीखेंगे. तो वो क्या है, आइए देखते हैं. गाइस, चैप्टर के एक्सरसाइज की लास्ट पोर्शन को जो है वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं. और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द ग्रामेटिकल पार्ट. और उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है वो यूज़ करने लगे हैं कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है. Past continuous tense पहले तो होता क्या है? It is used to talk about an action that was happening at a specific time in the past. Past में कोई एक particular time पे, specific time पे, हमें उस time का पता है जब कोई action हो रहा था, उसके बारे में बात करें तो past continuous tense में करेंगे. और इसके लिए फिर हमारे पास जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में तीन तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. तो आइए देखें कि किस तरह से. अफर्मेटिव में वी फर्स्ट हैव अ सब्जेक्ट फॉलोड विद वाज और वर, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है. देन फॉलोड विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस भी है. एंड देन वी ऐड एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग ए film, they were watching a film, right? और फिर उसके बाद हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने लगे तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वॉज वर का जो पोजिशनिंग है उसको हम एक दूसरे के साथ जो है वो स्विच कर देंगे. सो was और were, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ing और ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, were they watching a film, they were watching a film और were they watching a film. See, so the difference is quite obvious. And then negative के अंदर आएंगे तो फिर affirmative का ही पूरा का पूरा जो है वो हम रखेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जब was और were लगाया तो was और were के बाद हम not का वर्ड ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल, they were not watching a film, वो फिल्म नहीं देख रहे थे. Now we are provided with a few examples जो कि हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से past continuous tense को different example में यूज़ किया गया है. जैसे कि the children were playing in the park. Yes, they were playing in the park. फिर my mother was cooking dinner. I was reading a story at night. Were you listening to the teacher? Or he was not feeling well yesterday. सब ने हम देख रहे हैं कि किस तरह perfectly past continuous tense को इस्तेमाल किया गया है. Now we have another thing. We have to rewrite the sentences in the past continuous tense. कुछ sentences provided हैं, उनको हमने दोबारा से लिखना है past continuous tense में convert करके. जैसे कि Sarah cleaned the hall. Sarah was cleaning the hall. The boys played cricket. The boys were playing the cricket. I did my homework. I was doing my homework. We watched TV. We were watching TV. And Ali wrote a letter. Ali was writing a letter. And now what we do is, now that we are successfully done with past continuous tense, we're going to start off with punctuation. Let's see कि अब यहाँ पे हम कौन सी punctuation सीखने जा रहे हैं. Punctuation marks करते क्या हैं? They help us write clearly and correctly. Obviously हमें वो necessary pauses और necessary exclamation marks और emotions जो हैं वो gauge करने में मदद देते हैं किसी भी written text. So we use number 1 capital letters at the beginning of sentences and for proper nouns. कोई भी proper noun कहीं पे भी sentence में use हो रहा होगा उसका first letter capital किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा. और कोई भी जुमला शुरू हो रहा हो तो उसका भी पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटलाइज किया जाएगा. नंबर 2, फुल स्टॉप इज़ यूज्ड टू एंड स्टेटमेंट्स. फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है जब भी आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा होता है. क्वेश्चन मार्क टू एंड क्वेश्चंस, कहीं भी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड पे लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा. एक्सक्लेमेशन मार्क शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जहाँ पे आप इमोशंस को शो कर रहे हैं, फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं. देन कोटेशन मार्क्स टू शो स्पोकन वर्ड्स, जहाँ पे आप किसी की डायरेक्ट स्पीच को कोट कर रहे हैं तो उसको आप हमेशा कोटेशन मार्क्स में जो है वो लगा देते हैं उसके साइड्स के ऊपर, जस्ट टू शो कि ये किसी बंदे ने एज इट इज़ बोला था. So what we're going to do is there is a short paragraph which is provided to us at the very bottom of page 58 और उसमें हमने punctuation marks को correctly put करना है, including capital letters as well. Yesterday our teacher asked us what we wanted to become in the future. तो yesterday से sentence शुरू हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, capitalize कर देंगे y को. Yesterday our teacher asked us what we wanted to become in the future, full stop. Ali said
he wanted to be a doctor because he likes helping people. यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है अली की। उसके बाद सारा अलग बात करना शुरू कर गई है। तो अली वाली स्टेटमेंट को हम अलग रखेंगे और अली का ए जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे क्योंकि फ्यूचर के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया था। अली said he wanted to be a doctor because he likes helping people, full stop. Now Sarah said I want to be a teacher as I enjoy teaching children. सी अब यहाँ पे उसकी बात भी ख़त्म हो गई है। फिर वाओ दैट साउंड्स ग्रेट सेड द टीचर। अब ये टीचर ने कुछ कहा है। सो सारा सेड आई वांट टू बी अ टीचर एज आई एंजॉय टीचिंग चिल्ड्रन। अब सारा का एस जो है वो कैपिटलाइज होगा। सेड के बाद आई को कैपिटलाइज करोगे और आई के पहले जो है वो आप कोटेशन मार्क ऐड कर सकते हो क्योंकि उसने ऐसे आई वांट टू बी अ टीचर एज आई एंजॉय टीचिंग चिल्ड्रन और उसके बाद कोटेशन मार्क्स एंड किया और फुल स्टॉप भी बीच में। कोटेशन मार्क से पहले बेसिकली फुल स्टॉप आता है। वाओ, वाओ का डब्ल्यू भी आप जो है वो कैपिटलाइज करेंगे और वाओ के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। दैट साउंड्स ग्रेट, फुल स्टॉप। और इस सारे को वाओ से लेकर ग्रेट तक को कोटेशन मार्क्स में आपने रखना है। फिर कोमा लिखना है और फिर सेड द टीचर। हमेशा कोटेशन मार्क के बाद जब आप बात करते हो हु सेड समथिंग तो फिर कोमा आता है। सेड द टीचर और उसके बाद फुल स्टॉप और फिर उसके बाद शी का एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। शी एनकरेज्ड ऑल स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड फॉलो देयर ड्रीम्स। सी तो यहाँ हम पहले देख रहे हैं अली ने जब बात की थी तो अली सेड ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। ये अब कोई और उसकी कहे को रिपोर्ट कर रहा है लेकिन सारा की बात में आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो ये थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग नहीं है तो बिकॉज डायरेक्ट बात उसकी एज इट इज़ कोट की गई है इसलिए हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाए हैं। अली के कहे को कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा। Now we turn to page 59 and here comes the most interesting part of the entire exercise and that is to listen and speak. Dialogues को हम पढ़ेंगे और अपने पार्टनर्स के साथ उसको प्रैक्टिस करेंगे और एक एक रोल जो है वो हम कोशिश करेंगे कि बखूबी निभा सकें। तो हसन एंड अहमद आर टॉकिंग टू ईच अदर। लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। हसन सेज अस्सलाम वालेकुम अहमद, हाउ आर यू टुडे? अस्सलाम वालेकुम अहमद, आप आज कैसे हो या कैसा महसूस कर रहे हो? अहमद गोज़ लाइक वालेकुम अस्सलाम हसन, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए, आप कैसे हो? एंड हसन सेज आई एम डूइंग वेल, यू सीम क्वाइट थॉटफुल टुडे, व्हाट्स ऑन योर माइंड? हसन कह रहा है कि मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ, आज आप बहुत सोच में गुम से लग रहे हो, क्या है आपके दिमाग में? अहमद सेज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर। कह रहा है कि मैं सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। हसन सेज हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम? हसन पूछ रहा है कि भाई क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या बनना चाहोगे? सो अहमद सेज यस आई वांट टू बिकम एन इन्वेंटर वन डे, आई एंजॉय क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है हाँ मैं एक दिन इन्वेंटर बनना चाहूँगा, मुझे नई चीज़ें बनाने में और नए प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। हसन सेज दैट्स अ ग्रेट गोल, इट साउंड्स चैलेंजिंग। ये तो एक बहुत बड़ा गोल है और बहुत चैलेंजिंग भी सुनने में लग रहा है। अहमद सेज इट इज़ बट आई बिलीव डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क कैन हेल्प मी सक्सीड। वो कह रहा है कि ऐसा ही है लेकिन मैं ये ज़रूर यकीन रखता हूँ कि डिटर्मिनेशन के साथ अगर काम करूँगा और मेहनत के साथ काम करूँगा तो मैं ज़रूर कामयाबी पा जाऊँगा। हसन सेज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, समटाइम्स आई वरी अबाउट द लॉन्ग जर्नी अहेड। हसन आगे से बता रहा है, शेयर कर रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन कभी कभार जो उसकी सारी आगे जर्नी आएगी, मेरे आगे चैलेंजेस आएंगे, मसले मसाइल जो भी फेस करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उस सबसे मैं थोड़ा सा जो है वो फिक्रमंद हो जाता हूँ उस बारे में। अहमद सेज फीलिंग वरीड इज़ नेचुरल बट करेज हेल्प्स अस फेसिंग चैलेंजेस। तो अहमद उसे बताता है कि फ़िक्र होना जो है वो बहुत ही नेचुरल सी बात है। असल जो बात होती है वो ये है कि कोई भी चैलेंज आए तो उसको बहादुरी से जो है वो फेस करना, दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू। हसन कहता है ट्रू, इफ़ वी स्टे फोकस्ड एंड कीप ट्राइंग वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो हसन आगे से एग्री कर रहा है कि हाँ सच है ये बात, और अगर हम अपना फोकस पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें और मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें तो हम एक दिन अपना गोल जो है या अपने गोल्स जो हैं उनको अचीव कर लेंगे। अहमद सेज एग्जैक्टली सक्सेस कम्स टू दोज हु डू नॉट गिव अप इजीली। वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कि ईजिली गिव अप नहीं करते। हसन सेज लेट्स प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड सपोर्ट ईच अदर। तो हसन आगे से कहता है कि चलो आओ वादा करते हैं कि हम मेहनत करेंगे और एक दूसरे को जो है वो
सपोर्ट भी करेंगे। अहमद सेज इंशाल्लाह और एफर्ट्स विल लीड अस टू सक्सेस। कह रहा है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिशें जो हैं वो हमें हमारी कामयाबी तक ले जाएंगी। सो स्पीक अप गाइस, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस योर फ्यूचर गोल्स। एक दूसरे के साथ पेयर्स बना लीजिए और अपने फ्यूचर गोल जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली जो है वो बात कीजिए एंड शेयर योर आइडियाज़ विद द क्लास। और अपने आइडियाज़ को फिर बाद में डिस्कशन जब आपने अपने पेयर के साथ कर ली है तो फिर उसके बाद अपने क्लास के साथ भी डिस्कस कीजिए। एंड विद दैट वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ टू राइट वेल। राइट वेल में हमने क्या करना है, वी हैव टू इमेजिन यू आर अ साइंटिस्ट। तो सोचें, इमेजिन करें कि आप जो हैं वो एक साइंसदान हैं। What would you like to invent? Maybe a miracle plant to feed all the hungry people in the world, or a magic potion that would make everyone peace-loving and thereby remove war and terrorism from the world, or perhaps a time machine that would allow you to travel backwards or forward in time. तो आप क्या इन्वेंट करना चाहेंगे? मे बी हो सकता है कि आप एक ऐसा मिरेकल प्लांट जो है मोज़ाती पौधा आप इन्वेंट करना चाहें जो कि सारे हंग्री पीपल, जितने भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता जितना चाहिए कि उनको नहीं मिल पाता, तो उनको खाना मिल पाए उसके थ्रू। या फिर कोई एक ऐसा मैजिक पोशन आप बना पाएँ जिससे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ अमन के साथ और प्यार के साथ मोहब्बत के साथ रहना शुरू कर दें, और इस वजह से जो है फिर दुनिया से वॉर, जो जंगें हैं और जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जा सके। या फिर परहैप्स आप ये चाहें कि आप टाइम मशीन बना लें ताकि आप जो है वो टाइम में, पास्ट में या फ्यूचर में जो है वो मूव कर सकें। सपोज यू हैव सक्सीडेड इन मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन लाइक दैट, और सोचें कि आप मान लें कि आप जो हैं वो सक्सीड कर चुके हैं या फिर कामयाब हो चुके हैं ऐसी इन्वेंशन बनाने में। Now what you're going to do is you're going to write a newspaper report about your invention and give it a suitable headline. तो अब आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट अपनी इस इन्वेंशन के बारे में लिखेंगे और उसके लिए एक सूटेबल हेडलाइन भी बनाएंगे। Alright, so we're done with our tense. हमने एक नए टेंस के बारे में देखा, हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बेसिकली जो है एक्सप्लोर किया, देखा कि किस तरह से उसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो हमने डायलॉग पढ़ा। एक डायलॉग हमने खुद पढ़ा जिसमें हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी फ्यूचर के बारे में किस तरह से, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में किस तरह से एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं जो कि उनको हेल्प करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसी तरह से आप पे भी है कि आप अपना जो है वो एक डायलॉग बनाइए, अपने फ्रेंड के साथ जो है उसको डिस्कस कीजिए, अपने क्लास के साथ डिस्कस कीजिए, टीचर या पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, सो दे कैन ऐड ऑन मोर वैल्यू टू इट, राइट। और लास्ट चीज़ जो रिटन पार्ट हमने किया उसके अंदर हमने न्यूज़ आर्टिकल किस तरह से लिखना है। इफ़ यू आर एन इन्वेंटर एंड यू माइट हैव इन्वेंटेड समथिंग, आप सोचें, सपोज कर लें कि आपने एक चीज़ सोची और आपने उसको इन्वेंट कर लिया, बना लिया, तो फिर उसको आपने लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है, दैट इज़ थ्रू राइटिंग अ न्यूज़ आर्टिकल। सो इफ़ अगर थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग लगे, ऑलरेडी एक न्यूज़ आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में से निकाल के पढ़ें, समझें और उस पैटर्न पे अपना न्यूज़ आर्टिकल बनाएं। सो विद दैट मिल देंगे अब एक अगले चैप्टर के साथ इन द सेम सीरीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।